योहानाबाद नंबर 2 से है, क्रिश्चियन कम्युनिटी से हमारा तल्लक है। लेकिन हमारे साथ ही क्यों ऐसा तल्लक, हमारे साथ ही ऐसा क्यों सलूक होता है, हमारी बहनों बेटियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है कि मुस्लिम लोग, हमारी बहनें बेटियां बाहर काम के लिए जाती हैं लेकिन उनका मिसयूज किया जाता है। जानते भी शर्म आती है, वो एक बेहयाई है कि हमारी बच्चियों को उठाया जाता है और फिर मस्जिद में लपेटा जाता है और फिर हम पे रोक डाला जाता है। दोस्तों, आज ऐसे बहुत से क्रिश्चियन देश हैं जहां पर हर धर्म के लोग जो माइनॉरिटी में यानी कि कम संख्या में वहां पर रहते हैं, फिर चाहे वह मुस्लिम हो, हिंदू हो या फिर सिख। आज तक शायद ही आपने कभी सुना होगा कि इनके द्वारा वहां पर बनाए गए धार्मिक स्थानों पर या इनके ऊपर वहां के क्रिश्चियन लोगों ने हमला या मारपीट या फिर तोड़फोड़ की हो। और दोस्तों, वह धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े करने वाले अनपढ़ या फिर धर्म के नाम पर दंगे करने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर चलने वाले, सबसे प्रेम करने वाले और दूसरों की धार्मिक भावनाओं का भी सम्मान करने वाले लोग हैं। लेकिन वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर मसीह लोग माइनॉरिटी यानी कि कम संख्या में हैं और सताव, मारपीट, धर्म परिवर्तन और ईश निंदा जैसे झूठे आरोपों को सह रहे हैं, जिस कारण उन्हें उम्र कैद और फांसी तक की सजा भी दे दी जाती है। और वहां पर चर्चों की तोड़फोड़ भी बहुत ज़्यादा आम बात हो गई है और ज़बरदस्ती मसीह लोगों को अपने धर्म में लेकर आना या फिर विश्वास से हटाना, परेशान करना, ये बातें भी देखी जाती हैं, जिनमें ज़्यादातर मुस्लिम मेजॉरिटी देश ही शामिल हैं। हालांकि हमारे देश में भी कई बार कई जगहों पर कुछ हुड़दंगियों के द्वारा कुछ विश्वासियों के ऊपर झूठे आरोप और सताव लगाकर उनको भी सताया गया है, लेकिन कि टॉर्चर लेवल का सताव मसीह विश्वासी सह रहे हैं, जिनमें से एक मुस्लिम देश पाकिस्तान भी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले आइए मैं आपको कुछ वीडियोस को दिखाता हूं जो वहां से हमारे सामने आई है और फिर आगे इसके बारे में विस्तार से मैं चर्चा करता हूं। नाज़रीन, मैं इस वक्त 626 रसाला गाहबे जड़ांवाले ਦੀ तहसील ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸੀਹ ਬਲਾਦਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਮਜ਼ੀਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੂੰਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕਰ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਸਾਡਾ ਸਾੜਿਆ ਬਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਇਹ ਬਾਜ਼ੂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਬਾਜ਼ੂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ੂ ਟੁੱਟੀ। ਇਹ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਜ਼ੂ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਬੈਠਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਪਰਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ? ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਸਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਆਪਣੀ? ਵੀ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ 6 ਕਨਾਲ ਦਾ। 6 ਕਨਾਲਾਂ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਸਲ ਕਟਾਈ ਗਈ। ਫਸਲ ਕਟਾਈ ਗਈ, ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਆਪ ਕੱਟੀ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਟਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਕੋ ਆਪ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਮਜ਼ੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਾੜਨ ਸੜਾਉਣ ਦਾ? ਸਾੜਨ ਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਸਾੜ ਦੇਣੇ, ਢਾਹ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹਰਮਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਿਸਾਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਸਾੜ ਦੇਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਪੀਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਅਗਰ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੀ 24 ਤਰੀਕ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ 2 ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਗਵਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 68 DB ਕੋਟ ਵਾਲਾ ਬੰਗਲਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਜਜ਼ਮਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਲਪੁਰ ਦਰਿਆ ਨਾ।
ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕੁਝਰਾਂ ਲੈ ਗਏ ਗਵਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਚੁਕਾ ਕੇ ਮੇਰਾ 40 50 60 ਹਜ਼ਾਰ ਖਰਚਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਾਂ ਇਹ ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਆ ਗਈ ਏ ਉਸ अंदर भी गिलास नहीं आए खजानची जी पाकिस्तान के गैर मजहब यानी क्रिश्चियंस के हवाले से आवाज उठाने वाला कोई नहीं, तो सोचा ये सवाल मैं ही कर दूं। तो अगर आपके पास कोई मुसलमान आए और आपको कहे कि आप इस्लाम कबूल कर लें, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म या कोई भी मजहब छोड़ के ये इख्तियार कर लें, तो आप उनसे सबसे पहले कहिए कि आपके 5 अरकान में से है कि 4 किताबों को ईमान लाना या 4 किताबों पर ईमान लाना। तो चलें हम 4 किताबों पर ईमान लाते हैं। क्या आपने ये 4 किताबें पढ़ी हैं? ये तो वो लोग हैं जो कि 4 किताबें पढ़ने को गुनाह कहते हैं और इनके मौलवी हजरात बताते हैं कि अगर आपने कुरान खुद पढ़ लिया तो आप काफिर हो जाएंगे। तो 4 किताबें पढ़ना तो बड़ी दूर की बात, इन्हें तो शायद ये भी नहीं पता वो 4 किताबें किन किन जबानों में हैं। थैंक यू सो मच। क्योंकि हिब्रू पढ़ाने वाला कोई मौलवी मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में मौजूद है। दोस्तों, हमारे देश में बहुत से मामलों में संविधान के अनुसार हर किसी को आज़ादी है, जिसमें धर्म प्रचार की आज़ादी, एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन होकर किसी भी धर्म प्लेस, किसी के भी धार्मिक प्लेस जाने या फिर विश्वास करने की आज़ादी, और किसी भी धर्म को लेकर डिबेट या फिर खुलकर बात करने की आज़ादी, मिशनरी स्कूल, चर्च, हॉस्पिटल खोलने की आज़ादी, बिजनेस करने की आज़ादी जैसे मुथूट ग्रुप और MRF टायर जैसे वर्ल्ड वाइड फोर्ब्स की लिस्ट में आने वाली टॉप $1 बिलियन प्रॉफिट वाली कंपनियों के मालिक जो कि भारतीय क्रिश्चियन हैं, और कई सारे मुख्यमंत्री, नेता, रेलवे मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, बड़े बड़े वकील, जज, डॉक्टर और कई ऑफिसर आदि भी क्रिश्चियन हैं। यानी कि 100 करोड़ की मेजॉरिटी में माइनॉरिटीज को भी इतना बड़ा अधिकार दिया जाता है। बाकी दोस्तों, आप पाकिस्तान और अन्य मुस्लिम देशों में जो बहुत ज़्यादा स्थाप सह रहे हमारे मसीह विश्वासी भाई और बहन हैं, उनके लिए प्रार्थनाएं जरूर करें, क्योंकि उन्हें इस समय आपकी प्रार्थनाओं की बहुत ज़रूरत है। साथ ही हमारे देश के कुछ राज्यों में जैसे कि छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में रह रहे विश्वासियों के लिए भी आप प्रार्थना ज़रूर करें, और अपने देश के विश्वासियों के लिए भी प्रार्थना ज़रूर करें। बाकी दोस्तों, मेरा मकसद किसी भी देश या मजहब की बुराई करना नहीं है, लेकिन मेरा मकसद सच्चाई को दिखाना है, क्योंकि पड़ोसी देश में ही नहीं बल्कि इसके साथ लगते ईरान, अफ़गानिस्तान, इराक जैसे कई देश, कई अफ्रीकन देश और कई मिडिल ईस्ट के देशों में दूसरे धर्म को खुलकर मानने वालों के खिलाफ सख्त कानून बने हुए हैं, जिनका सहारा लेकर कई बार माइनॉरिटीज़ को सताया जाता है, उन्हें बड़ी से बड़ी सज़ा दे दी जाती है, जिनमें तो कई जगह इस्लाम छोड़ने पर इतनी भयंकर सज़ा दे दी जाती है कि इंसान की रूह भी उस सज़ा को देखकर कांप जाती है। बाकी परमेश्वर अपने सब विश्वासियों के ऊपर दया करें, ऐसे लोगों से जो धर्म के नाम पर उनसे नफरत करते हैं, उनसे अपने लोगों की परमेश्वर रक्षा करें, और उन विरोधियों का मन फिरे, उनकी आत्मिक आंखें खोलें, ऐसे भी प्रार्थना करें। और आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।